Hello students, welcome back to my channel Savita English Classes. In this video our topic is prepositions. What is preposition? Preposition is a vast chapter. It comes from the junior classes also, senior classes also, and in competitive exams also. Everywhere you will get this chapter, this topic, prepositions. So let's come with me. First of all, I want to discuss what is preposition. What is preposition? Preposition is made with two words, with the addition of two words. What is the meaning of pre? Pre means, it means before, and position means place. What is the position of any object, any living or non-living object? So let's discuss with the definition of a preposition. Preposition is a word placed before. Where to place? Placed before. Before a noun or a pronoun. To show, क्या करने के लिए? दिखाने के लिए. Its relation to the same other word. It means, what is preposition? Preposition is the word that comes before noun and pronoun to maintain relation in the sentence. So, how many types of prepositions? How many types? There are three types of a preposition. Simple prepositions, some compound prepositions, and with a phrasal prepositions. So we will discuss to all. First of all, then what they will indicate? All will indicate these three things. Simple also, compound also, and phrasal also. All these discuss these three things. What are the three things that they will discuss? That is time. They will show time. They will show place, and they will show direction. All prepositions will show time. Most of at, on, in, and the same prepositions will show at, on, in, place also, time also, and directions also, and so many other prepositions also we will discuss one by one, between, among, across, out, into, for, at. So we will discuss now one by one according to time, according to place, what is the difference in all. Then we will discuss all. Now we will do prepositions one by one. What is the use of all? First of all, we will take in. In, we use of in according to time also, and according to place also, according to direction also. So now come here. First of all, I write here month. What is month? It means if we get any name of any month, then we will use in preposition. In January, in March, school will reopen in July. तो मैंने क्या लिखा? मैंने क्या बोला? In July. Then what is it? It is the name of month. If we get in our sentence name of any month, अगर हम किसी महीने का नाम हमें मिलता है तो हम इन का यूज करेंगे. नेम ऑफ एनी ईयर. इन 1997 I passed my graduation. In 1997 I passed my senior secondary exam in 2012. Like this. In 1947 we got freedom. We got freedom in 1947. So what is it? If we get name of year,
किसी भी साल का हमें मिलता है इंडिकेशन, तो हम किसका यूज़ करेंगे? इन का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे एंड मंथ। अभी यहाँ पे मंथ मैंने लिखा है ऑलरेडी, बट इसके बावजूद भी मैंने लिखा है कि पर्टिकुलर टाइम। अब एग्जाम्पल के थ्रू आप देखें एक बार, पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे, पर्टिकुलर टाइम ऑफ डे। अब डे है हमारा एक कंप्लीट डे है, कंप्लीट डे बनाया, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग। ये पार्ट हो गया, पर्टिकुलर टाइम हो गया डे का। तो अब ऐसे अगर मॉर्निंग है हमारे पास सेंटेंस में, आई विल प्ले इन मॉर्निंग, तो हम क्या यूज़ करेंगे? इन। आई गो देयर इन आफ्टरनून, इन। आई विल गो इन पार्क इन इवनिंग, आई विल गो टू पार्क इन इवनिंग। देन व्हाट इज इट? इन इवनिंग, इन आफ्टरनून, इन ए मॉर्निंग। इट मीन्स अगर हमारे पास डे के पार्ट्स आते हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, देन व्हाट वी विल यूज़? वी विल यूज़ इन। देन एनी पार्ट ऑफ द, देखो मंथ, मंथ भी मैंने यहाँ इंडिकेट किया है। अगर मंथ, अगर वैसे भी हमारे पास मंथ हैं, इन जनवरी, इन मार्च, ये आते हैं, हम इन लगाएंगे। अगर पार्ट भी, इट मीन्स लाइक इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। अब जैन का मंथ है, जो फर्स्ट वीक के जो 7 डेज हैं वो हमारे किसका पार्ट है? फर्स्ट वीक किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ जनवरी। इट इज़ द पार्ट ऑफ आवर मंथ, 1 वीक। सो इन फर्स्ट वीक ऑफ ए जैन, सो एक पर्टिकुलर टाइम हो गया हमारे मंथ के अंदर। तो इस तरह से आई विल गो टू दिल्ली इन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। सो लाइक दिस वी विल यूज़ इन। नेम ऑफ एनी सीजन, अगर हमें सीजन का कोई भी नाम मिलता है, इन समर, इन रेनी, इन विंटर, इन ऑटम। नेम ऑफ सीजन, सीजन के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? इन को यूज़ करेंगे। देन ये हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है? ये सब, ये हमारे टाइम को इंडिकेट कर रहे हैं। ये सभी किसको इंडिकेट कर रहे हैं? टाइम को। देखो भाई, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा हमारा सीजन चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, ये सब किसको इंडिकेट कर रहे हैं? कौन सा मॉर्निंग टाइम है, इवनिंग है, अभी जैन टू फेब दिसंबर है, क्या है? तो ये सब हम किसको इंडिकेट, किससे इंडिकेट करेंगे? इन से। अभी इन्स को प्लेस के रूप में भी हम यूज़ करते हैं, ये हमने टाइम के रूप में यूज़ किया इनको। अब प्लेस, अब प्लेस मानो कोई भी, अब हम एक रूम के अंदर हैं, आप अपने घर के अंदर हैं। आई लिव इन माई हाउस, आई एम इन रूम। तो कोई भी अगर अंदर की जगह बतानी है तो वो क्या है? एक प्लेस है। आई एम गोइंग इन स्कूल, आई एम गोइंग इन ए स्कूल। अगर मैं स्कूल में जा रहा हूँ तो अगर मैं स्कूल में हूँ, आई एम इन स्कूल, आई एम इन ए स्कूल। तो इसको हम क्या करेंगे? इसको हम क्या करेंगे? ये जो सेंटेंसेस हैं हमारे, ये अकॉर्डिंग टू प्लेस हैं। प्लेस हैविंग सम बाउंड्रीज, इट मीन्स इन द होल, होल के अंदर, इन द रूम, रूम के अंदर। अगर हम क्या कहें कि, और सेंटेंस में अगर कोई कंट्री को, आई लिव इन इंडिया, इंडिया आपकी कंट्री का नाम है, आई लिव इन ए इंडिया। अगर कोई बिग सिटी है जिसमें आप रहते हैं, आप इंडिया में आ गए, फिर उसके बाद बिग सिटी में आई लिव इन दिल्ली। स्ट्रीट, अगर किसी स्ट्रीट में आप बता रहे हैं अपना एड्रेस कि मैं कौन सी स्ट्रीट में रहता हूँ, आई लिव इन एनी नेम ऑफ एनी स्ट्रीट, विवेकानंदा स्ट्रीट, रॉक स्ट्रीट, एनी स्ट्रीट यू कैन से। इन फॉरेस्ट, अगर फॉरेस्ट में है तो हम वहाँ पे इन यूज़ करेंगे। फील्ड है तो भी हम वहाँ पे इन यूज़ करेंगे। तो इन सब में प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इन को यूज़ करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस ऑन। वी हैव टू यूज़ with the name of the day,
कोई भी डे हमारा ऑन संडे, ऑन मंडे, इट मीन्स अगर हमारा डे का नेम आता है तो हम क्या यूज करेंगे? ऑन। डेट, कोई भी डेट है हमारी, ऑन। अगर डेट को हम मेंशन करते हैं तो किस तरह से करेंगे? डेट ऑन 16 Jan 2020। अब डे कौन से थे हमारे? संडे, मंडे। नाउ नेक्स्ट वन आई राइट हेयर स्टेट। स्टेट मीन्स यहाँ पे हमारी जो है कंडीशन क्या दिखाता है, किसी भी इवेंट की, टास्क की कंडीशन को भी शो करता है ऑन। किस तरह से कि अब एट प्रेजेंट इट इज़ विच सीजन? विंटर सीजन, समर सीजन। अकॉर्डिंग टू सीजन किसी भी अलग अलग चीज़ की डिमांड होती है। तो अभी समर में किस चीज़ की डिमांड है? इन समर शुगर केन जूस इज ऑन ए डिमांड। इज ऑन डिमांड इट मीन्स ये नहीं है कि शुगर केन जूस जो है ऊपर है, नहीं। ऑन डिमांड इट मीन्स है कि व्हाट इज़ द स्टेट ऑफ, व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ आवर प्रोडक्ट, कि ये अभी इसका जो पीक है ये लो पोजीशन पे है। दिस टाइप ऑफ कंडीशंस ऑल्सो शोज से ऑन। नेक्स्ट वन इज आवर बॉडी पार्ट। आवर बॉडी पार्ट को किस सेंस में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे ऑन? फॉर एग्जाम्पल, माई मदर किस्ड मी ऑन माई फोरहेड। तो ऑन माई फोरहेड मीन्स मेरे फोरहेड के ऊपर किस किया। तो यहाँ पे ये नहीं है कि मदर जो है वो फोरहेड के ऊपर, नो, इट इज़ एक कॉमन जो है वो एक, मतलब हमें उसको फील करना है कि दैट इज़ ऑन फोरहेड। माई सिस्टर फेल ऑन माई लेग, भाई मेरी सिस्टर मेरी लेग के ऊपर गिर गई। तो इस तरह से हम ऑन फोरहेड, ऑन लेग, तो बॉडी पार्ट के ऊपर अगर कोई चीज़ आती है टच में, देन वी विल यूज ऑन। पर्टिकुलर डे, व्हाट टाइप ऑफ पर्टिकुलर डे? इंडिपेंडेंस डे, ऑन इंडिपेंडेंस डे, ऑन रिपब्लिक डे, ऑन माई बर्थडे। तो ये क्या है? पर्टिकुलर डेज हैं। अगर पर्टिकुलर डेज हैं तो क्या यूज़ करेंगे? हम ऑन को यूज़ करेंगे। अब ये जो हमने यूज़ किया ये है टाइम को शो कर रहा है। ये डे, डेट, ये किसको शो कर रहे हैं? टाइम को। बॉडी पार्ट है हमारी बॉडी अटैचमेंट को। स्टेट जो है हमारी कंडीशन को शो कर रहा है, ये भी जो पर्टिकुलर डे ऑफ। बट हेयर सरफेस, सरफेस जो है ये प्लेस को शो कर रहा है। तो ऑन जो है हमारा टाइम के साथ साथ किसको शो करता है? प्लेस को भी शो करता है। अब मेरे हाथ में क्या है? डस्टर। डस्टर इज ऑन माई पाम। तो ये क्या है? इसका सरफेस है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी थिंग है, इसको मैंने इसके ऊपर रखा। तो माई डस्टर इज ऑन माई पाम और डस्टर इज ऑन माई पाम। सो व्हाट इज ऑन द टेबल, ऑन द वॉल, किसी के ऊपर, जो मीन्स सरफेस से। अभी आपके पास एक टेबल है, अब यहाँ पे बॉल है, तो ये क्या है? टेबल, बॉल इज ऑन द टेबल। बॉल जो है टेबल के ऊपर है। जो सरफेस हमारा क्या है? वो टेबल का सरफेस है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? ऑन को यूज़ करेंगे। नाउ वी कम टू एट। एट टाइम को भी शो करता है। देखो, टाइम को ऑन भी शो करता है, टाइम को इन भी शो कर रहा था। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, सब चीज़ों को अच्छे से बार बार वीडियो को देखकर लर्न करना है। टाइम, टाइम ऑफ क्लॉक। अब क्लॉक में क्या टाइम हुआ है? एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 6 o'clock, आई गो टू स्कूल एट 8 o'clock। इट मीन्स एट और नंबर जो आपका टाइम है, देन ओ क्लॉक। तो इस तरह से हम जो टाइम शो करेंगे क्लॉक का, उसको हम क्या शो करेंगे? एट से शो करेंगे। कोई शॉर्ट टाइम है,
भाई थोड़ा है, अब लंच ब्रेक टाइम, एट लंच ब्रेक, एट सनसेट, एट बेड टाइम, एट सनसेट, एट लंच, एट बेड टाइम। तो ये क्या है हमारी, ये शॉर्ट टाइम है। फॉर शोइंग शॉर्ट टाइम ऑल्सो वी विल यूज एट। देन फेस्टिवल, फेस्टिवल, नेम ऑफ एनी फेस्टिवल, एट क्रिसमस, एट दिवाली, एनी फेस्टिवल इट विल टेक एट। specific place, like any specific, I will wait for you at the bus stand, I will wait for you at the bus stand, I will wait for you at the entrance gate. It means ये एक specific place है जो हमने बताया, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, we will use at. If we are writing address, then also we will use प्रीपोजिशन एट। आई लिव, मैं कहाँ रहती हूँ, आप कहाँ रहते हैं। आई लिव, जो नंबर एंड एड्रेस 715 सेकेंड फ्लोर साउथ सिटी। लाइक दिस वी विल यूज एट। दिस वन इज द यूज ऑफ ऑन एंड ऑल दीज आर यूज ऑफ एट। देयर आर सम मोर prepositions that we will discuss. During, during is also our preposition. How to use during मीन्स जो उस समय के दौरान, इस तरह से अगर हमारे माइंड में आता है कि भाई उस समय के दौरान मैं ये काम करूँगा, आई विल डू दिस टास्क ड्यूरिंग माई हॉलीडेज, ड्यूरिंग विंटर हॉलीडेज, समर हॉलीडेज। तो ड्यूरिंग हॉलीडेज इस तरह से अगर हमें बताना है भाई ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ, डिस्ट्रक्शन हैपन ड्यूरिंग द वॉर, ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ है ये किस टाइम हैपन हुआ है, ड्यूरिंग द वॉर। तो इसके दौरान, ड्यूरिंग मीन्स के दौरान, इस तरह से अगर हमें किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है, किसी टास्क को बताना है, देन वी विल यूज़ ड्यूरिंग। बाय, बाय मीन्स एक तो दो यूज़ हैं इसके, एक तो तक, मैं ये काम उस समय तक फिनिश कर दूंगा, बाय, और एक के द्वारा, के द्वारा। इट मीन्स अप टू दैट टाइम आई शैल फिनिश दिस टास्क बाई 4 PM टुडे। आई शैल फिनिश दिस टास्क, मैं इस काम को कर दूंगा बाय। बाय यहाँ जिसका जो अर्थ है वो है तक, मैं उस समय तक इस काम को फिनिश कर दूंगा। और द लॉयन वॉज किल्ड बाय द हंटर, यहाँ हु इज किल्ड, लॉयन इज किल्ड, और बाय किसके द्वारा। तो लाइक दिस वी विल यूज बाय। नेक्स्ट वन इज फॉर। फॉर एंड सिंस वी हैव ऑलरेडी taken so many examples in tenses also, where to use for and where to use since. That is the same things. For is used for period of time, for 6 months. I have been reading this novel for 6 months. Since, it has been raining since morning. Since is used for point of time and for is used for period of time. Then next one is on to. On to को moment show करने के लिए हम रेफ़र करते हैं किस मोमेंट को भी, कम ऑन सरफेस। अब नीचे से ऊपर कोई चीज़ आती है तो वो क्या है, मोशन में भी है, मोमेंट में भी है, और वो सरफेस पे भी आ रही है। कैट क्लाइंब्ड ऑन टू द रूफ, कैट नीचे से आई छत के ऊपर, मोमेंट में भी है और छत के रूफ के सरफेस के ऊपर भी है। अपॉन, upon is also on to and upon I write here both side by side because both used for a moment. He fell upon the ground. He fell upon the ground. वो ground से up से नीचे से ऊपर से नीचे आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, up on, up on. He fell upon the ground. ground के ऊपर गिरा। On to, come on the surface. Cat climbed on to the roof. So this one is the use of during, by, for, since, on to and upon. Our next preposition is to. We have to use preposition to for showing direction, means we are going in any direction. हम किसी भी डायरेक्शन में अगर जाते हैं तो किस प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे, हम टू प्रपोजिशन का यूज़ करेंगे।
राधा इज गोइंग टू लंदन, राधा लंदन जा रही है. नेक्स्ट यूज ऑफ टू इज एज एन इन्फिनेटिव. टॉपिक ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स वी डिड इट. Infinitive we always use to plus a first form. We eat to live. हम खाते हैं जिंदा रहने के लिए. तो यहाँ पे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे ये जो है एक प्रीपोजिशन है टू, बट ये किसको शो करता है? That shows purpose. What is the purpose of eating? Purpose of eating is to live. Next one is to show any limit or कोई ending point. It means C plays 4 p.m. to 6 p.m. It means ये starting time and this one is ending time. It is the limit of a playing. They work Monday to Saturday. It means it is the limit duration of ending point and starting point of a work. Next one is I am going to Bombay. Like this, Radha is going to London. I am going, it means किसी की तरफ हम जाते हैं. बट कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक कंसेप्ट को लेकर, किस कंसेप्ट को लेकर, कि आई एम गोइंग टुवर्ड्स बॉम्बे और आई एम गोइंग टू बॉम्बे. देन व्हाट इज द डिफरेंस इन बोथ टू एंड टुवर्ड्स? टू मीन्स आई एम गोइंग टू बॉम्बे, इट मीन्स मैं डेफिनेटली बॉम्बे ही जाऊंगा, यहाँ पे डाउट नहीं है. और जब हम टुवर्ड्स यूज करते हैं, टुवर्ड्स इज ऑल्सो आवर प्रीपोजिशन, ये भी डायरेक्शन को शो करता है. तो इट मीन्स आई एम गोइंग टू बॉम्बे, भाई मैं बॉम्बे तो जा रहा हूं, बट हो सकता है मेरा मन कहीं और विचलित हो जाए और मैं रास्ते से कहीं और चला जाऊं, या बॉम्बे से मैं के आसपास कहीं चला जाऊं. बट मेरी जो डायरेक्शन है वो क्या है? बॉम्बे की साइड है. बट फिक्स जो प्लेस है दैट इज नॉट बॉम्बे. इफ वी विल यूज टुवर्ड्स देन दैट इज नॉट फिक्स. Or if to is there, then that is fixed. One more is from. She is coming from London. वो जब हम कहीं से come from होते हैं, और देखो ये फर्स्ट एग्जाम्पल को एक बार दोबारा देखिए आप. I am going to Bombay. जब हम फिक्स कहीं जा रहे होते हैं तो go to, going to. और जब हम वहीं से कहीं से भी जब हम आ रहे होते हैं तो coming from, not coming to London. Coming from, जब हम आ रहे हैं then coming from, going then going to. Yes. अब जो from है ये एक cause को भी बताता है, कारण को भी बताता है. किस cause को बताता है, किस रीजन को बताता है कि भाई आप किस रीजन से. She is suffering blank headache. She is suffering from. It means ये कॉज है, ये रीजन है, रीजन ऑफ हेडेक, सफरिंग फ्रॉम ए हेडेक. नेक्स्ट इज ओवर. ओवर मीन्स टू कवर, कवर करने के लिए किसी चीज को. फॉर एग्जाम्पल आई पुट माई फिंगर्स ओवर माई आईज. मैंने ऐसे इसको ड्रैप किया, कवर किया अपनी आईज को. सो दैट दिस वन इज ओवर. अबो, अबो करने के लिए इट मीन्स जो सरफेस से टच नहीं है बट वो अबोव है. तो अबोव क्या है? द टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इज अबोव 45 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स अबोव, नॉट टच विथ. It means measurement, feeling of anything. So these are the some prepositions I discuss here in this video, and more prepositions with pair groups. Like sometimes you get confusion there. Then that is like in and into, by and with, after, in, at, in, beside, besides. Like this you feel confusion here. So in one more video, next video, in part 2 of prepositions, we will discuss all prepositions in pair where we get confused always. So watch this video and like, share or subscribe my channel.